to one and all. It's a matter of great pride and honor that we all are gathered here to celebrate the 72nd Republic Day of our country. Our ancestors gave us a glorious past. We together need to create the future. This Republic Day, let us lead the change and become true Indians. With this thought, let's commence our event with the college anthem. Josh? भविष्य बना सकूं, दे मुझे स्वर भारती। MKS विद्यालयों से प्राप्त शिक्षा महान
Thank you, Josh. Teachers are our greatest public servants. They spend their lives educating our young people and shaping our nation for tomorrow. And our Students' Council convener, CA Dr. Reena Desai, is a great example of being a devoted teacher who, with her knowledge and supportive nature, has helped shape many young minds. I request Dr. CA Reena Desai to begin the proceedings. Ma'am. Thank you, Ankita, for your kind words. Good evening, everyone. On behalf of the management, principal, and vice principal of Nagindas Khanwala College and BSGD's Junior College, I take this opportunity to welcome Shri Mangesh Nayak, Assistant Sub-Inspector, for today's session on 26/11, a real life story. It is said in Bhagavad Gita, in chapter 2, slok 38, fight for the sake of duty, treating alike happiness and distress, loss and gain, victory and defeat. Fulfilling your responsibility in this way, you will never incur sin. Selfless deeds make one free from worldly bindings. Today, on the 72nd Republic Day of our country, I feel Mr. Mangesh Nayak is the best person to be with us and remind us of how fortunate we are to have people like him around to protect us constantly and who serve the nation at the cost of their lives. Thank you, sir, for being with us and making us feel proud. A salute and warm welcome to you, sir. It's a pleasure to have with us today the strongest yet the modest, dynamic yet down to earth, and the most confident yet humble leader, our principal, Dr. Mrs. Nancy Jose, who is always concerned about the overall development of our students and has the dream of molding students on all fronts. She firmly believes that sensitizing students about the sacrifices made by the soldiers and corps make them more humble and inculcate the attitude of gratitude towards the people who serve our country. A warm welcome to you, ma'am. We are glad to have with us today our vice principals, Professor V.G. Suchak from Degree College, Dr. Mona Mehta from Self-Finance Section, and Ms. Anuja John from BSGD's Junior College. A warm welcome to you all and thank you for your wholehearted support and encouragement. Your presence in the program adds confidence and motivates us to take up such responsibilities. I also welcome Adjunct Professor C. Dr. Varsha Ainapure for joining us today. Welcome to the faculty members of Council, Dr. Vinay Prabhu, Mr. Edwin Matthias, and CA Ankita, who work hand in hand to make all events successful. A warm welcome to all my dear colleagues from Degree, Self-Finance Section, and Junior College, who are always active and lively in supporting each and every event of the college. I take this opportunity to welcome one of our precious alumni and ex-Students' Council President, Mr. Parth Goswami, to initiate this program and help us in bringing today's guest. Also, the students of Team Springs, who are ever enthusiastic and always on toes to take up the council activities so efficiently and tirelessly, even in the most difficult of times. They celebrate and enjoy various festivals and events at the same time, understand and never forget to mark Pulwama Day, Kargil Day, and today, 26 month. Thank you, students. A hearty welcome to all students, attendees, CRs, NSS students, without whom no program is a success. With these words, I would hand over the session to CA Ankita. Thank you very much. Thank you, ma'am. As they say, if you have to put someone on a pedestal, put our teachers. They are our society's hero. College, V.G. Suchak sir. Sir has made an impression on our learners by being committed to them and values to our students. I invite you, sir, and we look Suchak sir? Yes. Yes, thank you. Thank you, Ankita madam. Good evening, one and all. 72वां तक दिवस के अवसर पर सबका मैं हार्दिक अभिवादन करता हूं।
My compliments to one and all. My Vice Principal colleague, Dr. Mona Mehta, Anuja John, Dr. C.A. Reena Desai Madam, all the members of Students' Council, all other faculty members, student volunteers of degree, junior, and all the student participants. On behalf of the Madam Principal, on behalf of each one of us, let me extend a very warm welcome to our chief guest, Shri Mangesh Ji Nayak. Though Reena Madam is already done, but in absence of Madam, let me join her in welcoming Shri Mangesh Ji Nayak at Nagindas Khandwala College. It is indeed for me to be associated this evening with you all. My compliments go to CA Dr. Reena Desai and her team for conceiving a beautiful idea of having Shri Mangesh Ji Nayak today as a guest speaker on a very auspicious, and I am eagerly looking to him, to listen to him and his first-hand experience of nabbing one of the dreaded terrorists, Kasab. If we connect, well versed, but still 26th January 1950 was the day when our constitution came into existence. Yesterday, when I was reading one of the articles in one of the newspapers, I learned, which I was not knowing before, I learned that there are 8 members given the role and responsibilities of framing the constitutions under the able leadership of late Baba Sahib Ambedkar. And in that 388 members, I could read more than 20 names of leading women of that times. So even at that time, our women leaders were not far behind in framing one of the finest constitutions in the world. Without taking much of your time, because we Sri Mangesh Ji Nayak and listening to his experiences. So once again, welcome to him, sir, and compliments and thanks to Reena Desai Madam for allowing me to share some of my thoughts with you. Thank you very much. Ankita Madam. Thank you so much, sir. Brave men rejoice in adversity, just as brave soldiers and police officers triumph in difficult times. A great nation is a nation that respects the service of the hero, and heroes are those who risk their lives every day to protect our world and make it a better place, who miss celebrating festivals with their loved ones so that we can enjoy with our entire family, who sacrifice their sleep so that we can sleep peacefully. Now I request our ever smiling and always energetic Dr. Vinay Prabhu sir to introduce us to one such extraordinary citizen. Sir. Thank you, Ankita. A very warm good evening to one and all. I'm excited about the task that I have been given today, that is of introducing the guest of today's program, Shri Mangesh Nayak. Well, what is so exciting about it? For me, this introduction is an opportunity to express my gratitude through Mangesh Nayak to the unsung faceless warriors and heroes who do so much for us, yet are regular targets of high criticism, of ridicule at times. Currently, I am reading the autobiography of retired Commissioner of Mumbai Police, Mr. Rakesh Maria, who is famous for solving the Bombay
bomb blast case of 1993. This book has and given me an insight into the bravery, courage, mental strength, determination, hardships, steel like fortitude of our policemen acknowledged. In our country, heroics, bravery, and courage are generally associated with the armed forces. And when we talk about them, we talk of them with a lot of awe, admiration, and respect. We often say that if we can sleep peacefully at night, it is because our borders are safe, and the credit for it goes to our armed forces. This is so true, and please believe me, I do not dispute the love and respect they get. They deserve every bit of it and even more. My only complaint and grievance is that we do not appreciate and tend to overlook the hard work of our policemen who guard our bylanes, who are the first people we rush to when there is an accident, theft, conflict, or some heinous crime, who work for inhuman hours, who have to deal with the highest levels of political interference, who fight their battles with outdated technology and weapons in their armory, who manage our notorious traffic in all kinds of weather, which is made even worse by our own indiscipline, and who provided stellar and exemplary service when the COVID hit us. I somehow get a feeling that this is a classic but extremely sad case of Ghar Ki Murgi, Dal Barabar, or familiarity breeds contempt. It is in this light that I want to introduce Sri Mangesh Naik. I feel I would have done terrible injustice to Sri Naik and to the entire police force if I had merely stuck to the extremely brief resume provided by the very modest Sri Naik. On a more formal note, Sri Mangesh Naik joined the police in 1985. He currently serves as an assistant police sub-inspector at Kasturba Police Station, Borivali East. He has Police Medal for Gallantry and DG Insignia by President Srimati sorry, by President Srimati Pratibha Patil, as well as by Governor of Maharashtra S.C. Jamir for his bravery. In fact, the number of times Mangesh Naikji has been felicitated and called to hoist the Indian flag by various organizations is so long that I can go on and on. But what Sri Mangesh Naik is most famous for is his demonstration of valor, courage, and bravery when terrorists attacked our beloved city of Mumbai on November 26, 2008. He was personally responsible, along with other policemen, for the capture of one of the terrorists, Ajmal Kasab. Today, on the occasion of the 72nd Republic Day, we are delighted to have Sri Mangesh and share with us what happened on that fateful night of an event that is etched in our minds and hearts. Sir, we are truly indebted to you and all other policemen for everything that you all have done and continue to do for us. With these few words, I now request. Thank you. Thank you so much, sir. And now I request Sri Mangesh Nayak, sir, to share the experience of 26 November. Good evening to all. NL College principal, vice principal, staff members, आज मुझे आपके वेबिनार में ज्वाइन किया, आपका शुक्रिया। 26/11/2008 हमें वायरलेस मैसेज मिला, VT स्टेशन, कामा हॉस्पिटल, रंग भवन, होटल ओबेरॉय ताज, नरीमन हाउस, कैपिलियो कोर्ट, ऐसे बहुत जगह फायरिंग्स और बॉम्ब हल्ला चालू है। वापिस थोड़ी देर के बाद मैसेज फ्लैश हुआ कि ये लोग ज़्यादा क्राउड है, उधर फायरिंग कर रहे। तो हम
गिरगांव चौपाटी उधर बहुत लोग घूमने के लिए आते हैं। 3-3.5 के ऊपर क्राउड रहते हैं। तो हम गिरगांव चौपाटी में हमारी टूरिज्म वैन, उसमें बैठ के पूरा चौपाटी घुमा के पब्लिक को मेगाफोन से अनाउंसमेंट किए कि आप जितना हो सके उतना जल्दी से जल्दी घर में निकल जाइए, क्योंकि बहुत जगह फायरिंग्स और बॉम्ब ब्लास्ट चालू है। ऐसा बोल के हम लोगों ने गिरगांव चौपाटी आधा पौना घंटा में खाली किया और कंफर्म किया पूरा खाली हुआ। बाद में गिरगांव चौपाटी जंक्शन उधर नाकाबंदी स्टार्ट किया। नाकाबंदी इस तरह स्टार्ट किया, नॉर्थ बॉर्न हम लोगों ने टोटल बंद किया था। मरीन लाइन से मलबार हिल जाने वाला रूट टोटल बंद किया था, और डबल बैरिकेड से, और एक एक गाड़ी हम लोग चेक कर रहे थे, अंदर के लोग, बैग, डिक्की सब चेक कर रहे थे, और कोई डाउटफुल नहीं लग रहा है तो हमारे 2 लोग बैरिकेड ओपन करके गाड़ी पास होने के बाद वापस बैरिकेड क्लोज। ऐसे एक एक गाड़ी चेक करते करते हमारे कंट्रोल से वापस एक मैसेज आया 12:15-20 के आसपास, टेररिस्ट स्कोडा गाड़ी में है, स्कोडा कार में है, और वो गिरगांव चौपाटी के और आ रहे हैं। तो हम लोगों ने नाकाबंदी और तेज की, और करीबन गाड़ी बराबर 12:20 के आसपास आई, और उन्होंने देखा अपना जाने वाला रूट ही बंद दिख रहा है। तो उसने अर्जेंट ब्रेक मारा और हमारे 50 फीट उनका गाड़ी खड़ा हो गया। तो उन्होंने वैसे गाड़ी के हेडलाइट्स ऑन थे, गाड़ी के स्क्रीन शॉवर चालू थे। तो हेडलाइट्स ऑन थे तो हमें अंदर के कुछ लोग नहीं दिख रहे थे। तो हम लोगों ने उनको नीचे उतरने के लिए बोला, तो उन्होंने कुछ सुना नहीं, और वो तेजी से हमारी तरफ आ गए, और उन्होंने देखा कि यहाँ से तो हम भाग नहीं सकते, पुलिस की पूरी नाकाबंदी है, तो यहाँ से हम तो भाग नहीं सकते। तो उन्होंने वैसे यू टर्न मार के भागने की कोशिश कर रहे थे। तो उधर रोड डिवाइडर पे उनकी जो गाड़ी थी वो रोड डिवाइडर पे लगी और वही रुकी। तो राइट में जो टेररिस्ट था उसका नाम अबू इस्माइल, और लेफ्ट में अजमल का सब बैठा था। तो राइट वाले टेररिस्ट ने फायरिंग की, तो हमारे भास्कर कदम पुलिस ऑफिसर, उन्होंने पहली फायरिंग की अबू इस्माइल की ओर, और वो गोली उसके अबू इस्माइल के राइट के आंख में लगी। उसके बावजूद भी वो AK-47 निकल रहा था। तो हमारे हेमंत बावधनकर साहब, उन्होंने सर्विस रिवॉल्वर से उसके ऊपर 3 राउंड फायर किए और उसको वहीं पे जख्मी कर दिया। तो इनका राइट साइड में कार्रवाई चालू है, तो हम लेफ्ट साइड में, मैं, तुकाराम ओमले, पाटिल, सोनी, शेड़के, हम लेफ्ट साइड में थे। तो हम लोगों ने स्कोडा कार का डोर ओपन किया और अजमल कसब की कॉलर पकड़ के हम लोग खींच रहे। तो उसने सरेंडर होने का नाटक किया, हाथ ऊपर किया और ऐसा के बाहर जंप किया, तो उसके साथ ही AK-47 आ गया। तो वो मुंह की तरफ गिर गया और वैसा ही तुरंत घूम रहा है ऊपर, ऐसा घुमा तुरंत, और उसने कुछ वो फायरिंग ऊपर AK-47 निकल रहे हैं, ऐसा हमारे ध्यान में आया। तो हम लोगों ने 4 ही लोगों ने उसके ऊपर झड़प मारा। तो तुकाराम ओमले साहब के सामने बैरल आया, जिससे गोली निकलता है, उसको बैरल बोलते हैं। तो ओमले साहब ने बैरल पकड़ा, ओमले साहब के बाजू में मैं उसका हाथ और पैर दबा के रखा और सोनी शेल्के ने उसका गर्दन दबाया। ऐसे कंडीशन में भी वो हमको नहीं सुन रहा था, क्योंकि ये लोग
जो ड्रग्स नशे जो करते हैं, वो नशे से उनको एनर्जी मिलता है और वो 2-3 लोग को भी नहीं संभालते, इतना उनको ताकत आता है। तो ऐसे कंडीशन में उसने पूरा ताकत से हाथ खींचा, डायरेक्ट स्ट्रेगर के ऊपर स्ट्रेगर दबाया। स्ट्रेगर दबाए तो ओमले साहब के सामने बैरल था, तो धड़-धड़ जो फायरिंग हुआ तो उसमें ओमले साहब नीचे गिर गए, उनको 6 राउंड फायर हो गया। ओमले साहब गिरने के बाद वो वैसा ही फायरिंग करते-करते उठ रहे हैं, तो मैं सामने ही था, मैं नीचे झुक के उसको धक्का देके गिराया और जो हाथ में गन था, वो हाथ घुमा के हाथ में जोर-जोर से फटका मार के उसके हाथ में जो गन था, वो निकाल के लिया। फिर भी उसने 1 मिनट गन नहीं छोड़ा था, बाद में पैर से दबा के और एक गन निकाल के लिया। और गन निकालने के बाद उसको हम लोगों ने पैर से और डंडे से इतना मारा, वो बेहोश पड़ा, फिर भी हम लोग को मार रहे थे, क्योंकि हमारे तुकाराम ओमले सामने गिरे हुए थे और उनके सीने से खून आ रहा था। वो देख के हम कसब के ऊपर पूरा टूट बैठे थे और उसको कैसे ही मार रहे थे। उस वक्त हमारे संजय गोयलकर साहब भागते आए और बोले, अरे रुको, एक तो जिंदा रहने दो, वो अपने लिए एविडेंस है, उसको मारो मत। तो हम लोग रुक गए और उसका हम लोगों ने पूरा झटके लिया, तो उसके पैंट के पीछे साइड में पिस्तौल मिला। और मैं आपको इतना जरूर बताना चाहता हूँ, गिरगांव चौपाटी में ये लोगों को हम लोग नहीं रोकते थे तो आगे वो बहुत नागरिक को मारते थे, बहुत लोग की जान जाती थी। लेकिन उनको रोका क्योंकि वो स्कोडा गाड़ी में हमको हैंड ग्रेनेड्स मिले, हाथ बम मिले, AK-47 मिले, इतना उनके पास दारू गोला था। लेकिन उनको रोका, इसलिए आगे का हादसा होने वाला तो वो टल गया। और ओनली फॉर लाठी, विदाउट वेपन, ओनली फॉर लाठी, वो उसको हम लोग लाठी से भिड़े, नहीं तो वो नहीं मिलने वाला था, लेकिन उसको लाठी से हम लोग भिड़े पूरा, इसलिए वो मिल गया। और उसके बाद तुकाराम ओमले जख्मी होते, उनको नायर हॉस्पिटल में लेके गए और कसब को तुकाराम ओमले साहब को हरकिशन दास को लेके गए, लेकिन वो जगह पे ही गए थे। और अबू इस्माइल और अजमल कसब, वो दोनों को नायर हॉस्पिटल में लेके गए। वो नायर हॉस्पिटल में उसको सलाइन वगैरह लगा है, तो वो भी 35 मिनट के बाद होश में आया, इतना उसको हम लोगों ने मारा था। लेकिन क्या संजय गोयलकर साहब भागते हैं, इसलिए वो बच गया। इतना बोल के मैं मेरा 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Thank you so much, sir. Thank you for saving us. Thank you for sacrificing your lives in order to keep us protect. We are thankful to you, and I don't think we will have enough words to thank you. Listening to sir tell that incident, my heart is filled with pride that I'm part of such magnificent nation. A nation where we have officers like sir who work so hard to protect us and inspire us to give back to the nation as good civilians. Now, better than 1,000 days of diligent study is the one day with a great teacher. And today, we have an amazing teacher with us who I have never seen without that charismatic and charming smile. I invite our Vice Principal Self-Finance, Dr. Mona Mehta, to propose the vote of thanks. Ma'am. Thank you, Ankita. Just a minute, Ankita madam. Yes, sir. No questions or nothing like that. I mean, I just. Yes, sir. Yes, sir. Anyone, if they want to ask questions, they can. Yeah. Yes, sir. We all have a lot of questions. I'm sure everyone has a lot of questions. If Nayak sir doesn't mind, can we take some questions, sir? मुझे एक सवाल उठ रहा है, नायक जी। Yes, sir. Yes.
आई मीन मेरी पर्सनल बिलीफ है ये, आपका क्या है मुझे मालूम नहीं है। ये जो एक कसाब ने आपके बहुत बड़े ऑफिसर को मार दिया और दूसरे काफी ये, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए शायद योग्य होएगा, बट मुझे तो ऐसा लगता है कि कसाब को जिंदा रख के भी, ऐसा नहीं लगता है आपको कि अब हम लोग, क्योंकि बाद में क्या होता है, उसका हॉस्पिटलाइजेशन बिल भरना पड़ता है, उसको खाना खिलाना, जब तक ये हमारे देश में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उसकी सपोर्ट में आ जाते हैं, ह्यूमन राइट्स के नाम पे बचाने का प्रयास करते हैं। एंड यू नो कितना उसका बिरयानी का बिल के बारे में हम अखबार में सुनते हैं, एंड बहुत सारे पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, अलग अलग लोगों की विचार नीति होती है। तो उसके हिसाब से तो मुझे लगता है कि वो जो एक आवेश में आके, आक्रोश में आके उधर ही उसको उड़ा दिया होता तो, एंड बाद में भी हमको मालूम था कि जो देश से वो आए हैं वो देश उसके ऊपर कुछ करने वाला नहीं था, तो आई मीन उधर ही उसका समाप्त कर देना चाहिए था। दैट इज व्हाट आई फील। व्हाट इज योर ओपिनियन सर? यस सर, उसका वो टाइम का जो सिचुएशन था, उसको जो वो गिर पड़ा था, हमको लगा वो मर गए, इतना उसको हम लोगों ने मारा था। और एक बार उसको मारने के बाद में सब हमारे क्राइम वगैरह सब लोग स्टाफ आ गए। तो जो प्रोसीजर रहता है, वो प्रोसीजर के हिसाब से तुकरम ओमले साहब को हर किसान दस लेके गए, और ये अबू इस्माइल और अजमल कसाब इनको नायर हॉस्पिटल में लेके गए, क्योंकि आगे का प्रोसीजर रहता है। और इंटरनेशनल जो क्रिमिनल बोलो, कोई भी बोलो, अपना टेररिस्ट बोलो, तो उसको अपने इधर में, अपने लॉकअप में बोलो है कि इधर भी उसको कुछ नहीं कर सकते, ये तो अपना देश का नाम खराब होता है। इसको बहुत संभालना पड़ता है, एक बार जिंदा मिल गए तो। और उससे इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो कहाँ से आया, कौन से देश से आया, उसके साथ कौन कौन और है, और इधर क्यों आया था, और किसने भेजा। ऐसे बहुत सवाल जवाब रहते हैं, ऐसा है। Do we have more questions for sir? I have a question, sir. Mangesh sir. हाँ, यस। नॉर्मली जब यंगस्टर्स अपनी करियर के बारे में सोचते हैं सर, हाँ हाँ तो दे थिंक अबाउट ल्यूक्रेटिव करियर जहाँ पे पैसा है, जहाँ पे कंफर्ट। तो सर आप कैसे इंस्पायर हुए इतना टफ करियर चुनने के लिए? एंड ये करियर बनाने के बाद भी there are various postings are there, you know, some are in the prisons, some are in, you know, different things you have to do, different duties, rotating duties you have. तो सर आप यहाँ तक कैसे पहुँचे कि आपने इतने बड़े मिशन में you are so, you know, so closely you have done all these things. तो हमारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को बहुत गाइडेंस और इंस्पिरेशन मिलेगा। सर अगर आप बताएंगे कि कैसे आपने ये सब चुना, कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? मैं महात्मा फुले टेक्निकल हाई स्कूल में था, और उसके बाद में डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज महाविद्यालय कॉलेज उधर हो गया। और 1980 में मैं कुलाबा आर्मी में मैं दोस्तों के साथ गया था। तो उधर मैं उधर ज्वाइन भी हुआ, भर्ती भी हुआ उधर। लेकिन दूसरे दिन उन्होंने बुलाया कि आप आते समय सब डॉक्यूमेंट्स लेके आइए। तो घर में आने के बाद कुछ घर का कुछ प्रॉब्लम, मतलब घर के कुछ कारण के वास्ते मैं आर्मी में नहीं जा पाया। लेकिन वो देश की सेवा करने की मन में बहुत जिद थी, आशा थी, इसलिए वापस मैं 1985 में पुलिस डिपार्टमेंट में ज्वाइन हुआ, भर्ती हुआ। और बाद में 85 में भर्ती होने के बाद तो अभी तक मेरे सामने बहुत, जो अपने इंडिया में कितने ऐसे बहुत दंगल बोलो, राइट्स, मर्डर्स वगैरह ऐसे मेरे सामने हुए हैं। हम लोगों ने बहुत देखे हैं, बहुत हैंडल किए हैं, तो सब अपने सामने हुए हैं।
और एक जिस डिपार्टमेंट में और देश के लिए कुछ करने का, देश के लिए कुछ देश की सेवा करने का एक मन में एक ये था। इसलिए वो टाइम पे मैं सोचा भी नहीं, हमको वायरलेस मिशन मिला था कि 2 लोग स्कोडा कार में हैं और उनके स्कोडा कार में बॉम्ब है, हैंड ग्रेनेड है और AK-47 जैसे हथियार हैं। ऐसा मैसेज मिलने के बाद भी हम लोगों ने और नाकाबंदी तेज की और बैरिकेड पूरा टोटल नॉर्थ बॉर्न हम लोगों ने बंद किया था डबल बैरिकेड से, क्योंकि वो गाड़ी जाना नहीं चाहिए इसलिए। और एक गाड़ी चेक कर रहे थे अंदर के बैग और सब, और कोई डाउटफुल नहीं लगा तो 2 लोग हमारे बैरिकेड ओपन करके गाड़ी पास होने के बाद वापस बैरिकेड क्लोज। ऐसा हम लोगों ने नाकाबंदी तेज किया था। इसलिए वो स्कोडा गाड़ी, उसका नंबर भी नहीं मिला था, खाली स्कोडा गाड़ी मालूम था। और वो बाद में सब मीडिया ने जो डायरेक्ट लाइव दिखाया तो बाद में जो कार वगैरह रोड पूरा सुनसान हो गया 11:30 के बाद। लास्ट में वो स्कोडा आ रहे थे, उसके पीछे 1-2 गाड़ी खाली दिख रहा था। तो ऐसा सिचुएशन में इतना मैसेज सुन के भी हम लोगों ने कुछ भी होने दो, अपनी इधर जान जाए तो भी चलेगा, लेकिन ये गाड़ी को छोड़ना ही नहीं, क्योंकि ये लोगों ने ब्रिटिश स्टेशन, कामर्सवेल, रंग भवन, टैपी लियोपोर्ड ऐसे बहुत जगह फायरिंग की है। लेकिन वो टाइम पे हमको मालूम नहीं था कि हमारे दिग्गज ऑफिसर, उनको भी ये लोगों ने कामर्सवेल में उनके ऊपर फायरिंग करके उनको जख्मी करके उधर से वो चौपाटी के साइड में आए थे। तो इतना बड़ा वो लोगों ने घातपात किया था। इसलिए कुछ भी होने दो, लेकिन उनको इधर से जाने को देने का नहीं इधर से। वो हिसाब से हम लोगों ने पूरा नाकाबंदी, तो मैं उधर खड़ा था, कुछ भी होने दो। Yes, sir. Mangesh sir, we have a question. Kavita ma'am is asking that we all want to know that how your family copes with the stressful situations you deal with, like fighting a terrorist, all the criminals, when you are on duty on festivals. How do they react to all these situations, sir? उस वक्त मेरे मिसेस ने मुझे फ़ोन किया था और मेरी फैमिली भी मुझे ऐसे काम में सपोर्ट करती है। तो वो जो हादसा हुआ उस वक्त मेरे जो हमारा ऑपरेशन चालू था, उस वक्त मेरे मिसेस ने टीवी पे लाइव देख रही थी कि करकरे साहब वो शहीद हो गए, बाद में करकरे, कामटे सालस्कर, बाद में ओमले साहब। तो मैं ड्यूटी के टाइम में मैं बोला था, नाइट में गया था, मेरी मिसेस फ़ोन करके बोलती है कि आपके साथ और कौन कौन है। तो मैं ओमले साहब का भी नाम लिया था। तो ओमले साहब भी उनको मालूम पड़ा तो वो भी बहुत टेंशन में आ गई। और बाद में ऑपरेशन चालू था और उस वक्त मुझे फ़ोन कभी आया उसका मालूम भी नहीं। और बाद में ऑपरेशन होने के बाद मैं उसको मिसेस को थोड़ी देर बाद मैं फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा एक बड़ा एकदम रिस्की ऑपरेशन था, लेकिन उसमें से मैं सही सलामत बाहर निकला हूँ। जो तुम्हारा जब फ़ोन आया था उस वक्त ही ऑपरेशन चालू था। मेरी मिसेस बहुत मतलब इतना टेंशन में आई थी, लेकिन बाद में वो बोली कोई बात नहीं, भगवान का दुआ है कि आप उधर से सही सलामत निकल आए। यस मैम, बोलिए आगे। और हमारी फैमिली भी स्ट्रांग है, मुझे हमेशा सपोर्ट करती है। Sir, we need you. I'm sure you need a family who supports you. नाईक Yes, सर, ma'am. Yes, ma'am. मला 2 प्रश्न विचारायचे आहेत तुम्हाला. हो, विचारा. एक म्हणजे तुम्ही म्हणालात की कासबला तुम्ही नायर हॉस्पिटलमध्ये नेलं आणि मग तो शुद्धीवर आला, बरोबर? मग त्याच्यानंतर काय प्रोसिजर होतं, कसं त्याला म्हणजे कुठे नेलं आणि म्हणजे काय होती कारवाई? तो एक प्रश्न. दुसरा प्रश्न हा की त्याच्यानंतर म्हणजे या एवढ्या मोठ्या हादसानंतर कुठे काय म्हणजे तुम्हाला वेपनरी वगैरे तुम्हाला म्हणजे प्रोटेक्ट करायला काही गव्हर्नमेंटनी काय मेजर्स घेतलेत का? आणि ते घेतलेले मेजर्स तुम्हाला वाटतात की इतके ते बरोबर आहेत, म्हणजे तुम्ही प्रोटेक्टेड वाटता का? म्हणजे तुम्ही म्हणालात लाठीनी तुम्ही केवळ तुमच्याकडे लाठ्या होत्या, तुमच्याकडे बंदुका सुद्धा नव्हती. सो म्हणजे तुमच्या प्रोटेक्शनसाठी गव्हर्नमेंटनी काय करावं असं वाटतं तुम्हाला? आणि रिअली थँक्यू व्हेरी मच. तुम्ही जे आमच्यासाठी केले आम्ही कधी विसरू नाही शकत की सिटी पोलीस आम्हाला रोज प्रोटेक्ट करता, इनविजिबल असता, पण आम्हाला लाईक म्हणजे आमचं लाईक वी आर नॉट ऑलवेज कॉन्शियस ऑफ इट, पण तुम्ही आमच्यासाठी खरंच खूप करता. थँक्यू सो मच. थैंक यू मैम। और कसब को
नायर हॉस्पिटल लेके जाने के बाद उधर हमारे एसीपी घाटगे साहब वो कसब से पूछताछ कर रहे थे, तू कहाँ से आया, तेरे साथ कौन कौन है, कौन से देश का है तू, सब पूछताछ कर रहे थे। और तुम्हारे साथ और साथीदार कौन कौन है और वो किधर किधर गए है, ऐसे सब बातचीत कर रहे थे। और सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या पूछा, मी हे विचारलं तुम्हाला की तुम्हाला बंदुका वगैरे दिली नव्हती ना, म्हणजे तुमच्याकडे लाठ्याच होत्या, तर म्हणजे एवढ्या मोठ्या हादसानंतर तुम्हाला काय वेपनरी मध्ये वगैरे काय इम्प्रुव्हमेंट्स आहेत का, मॉडर्न गन्स किंवा असं काय दिलेत का तुम्हाला, किंवा म्हणजे आणि तुम्हाला डू यू फील सॅटिस्फाईड, म्हणजे तुम्ही संतुष्ट आहात का तुम्हाला वेपनरी दिली आता देत आहेत ते वापरायला ते? आता तसं बघायला गेलं तर तरी पाहिजे तसे अजून बाकीचे वेपन आहे, SLR 303 पण ती पण जुनी झाली, पण SLR तर आहेत सध्या, नंतर 12 बोर वगैरे हा आहेत, पण AK-47 पोलिटिशियनला आहेत, पण जितक्या हवे तितक्या नाही आहेत. हम्म. आणि आणि परत तुम्हाला ट्रेनिंग मिळतं का मग ते वापरायला, म्हणजे हा. नवीन बंदूक वापरायला ट्रेनिंग देतात का? ट्रेनिंग म्हणजे त्यासाठी ट्रेनिंग ते लोक देतात, कारण SLR वगैरे याचं आमचं ट्रेनिंग झालेलं आहे. परत दर वर्षाला फायरिंगची आमची प्रॅक्टिससाठी पण आम्हाला घेऊन जातात, घाटकोपर डोंगरवर त्यासाठी, आणि तिकडे प्रॅक्टिस वगैरे घेतात. असं दरवर्षी सराव आमचा घेतात ते लोक. आणि परत त्या दिवशी केवळ म्हणजे अचानक हल्ला झाला होता, त्यामुळे आमच्याकडे फक्त लाट्या होत्या, आणि त्याला एक लाठीचे आमचं एक शस्त्र समजून त्याला आम्ही लाठी काठीला ताब्यात घेतला. रिस्की होतं, परंतु एकदम काही झालं तरी यांना इथून जाऊन द्यायचं नाही या जिद्दीने त्याला अक्षरशः आम्ही भेटलो त्याला, आणि झटापटी झाल्यानंतर त्याला अक्षरशः त्याला म्हणजे तो आम्हाला एवढं करून तो ऐकायला बघत नव्हता, कारण का तिचे नशा करतात ना, त्या नशेमुळे तरी भारी पडतात ते, म्हणजे ऐकत नाही. अशा परिस्थितीत आम्ही त्याला दाबून वगैरे ती गन काढून घेतली, आणि गन काढण्यात आम्ही त्याला खूप म्हणजे तो रागच होता, कारण आमचे समोर तुकाराम ओंबळे साहेब समोर आमचे कोसळलेले होते, आणि त्यांच्या शिन्यावरून खून येत होतं, रक्त येत होतं. त्यामुळे आम्ही एवढा संतापून त्याच्यावर तुटून पडलो होतो, त्याला कसेही मारवतो. तेवढ्यातच ते संजय गोविलकर साहेब आमचे धावत आले आणि बोलले, अरे थांबा, त्याला मारू नका, एक तरी जिवंत राहून दे, कारण तो आपल्याकडे एव्हिडन्स आहे, कारण तो कुठून आला, कुठल्या देशाला हे आपल्याला सर्व माहिती मिळेल, त्यामुळे त्याला मारू नका. म्हणून आम्ही मारायची त्याला थांबलो. आम्ही नंतर त्याची झडती घेतली, परत कुठे काय सायनाइडची गोळी वगैरे मिळेल म्हणून सर्व त्याचे बूट वगैरे सगळं चेक केलं, पण असं काही मिळून आलं नाही. आणि मग त्याला तसंच बेशुद्ध अवस्थेत आम्ही घेऊन गेलो. आम्हाला वाटलं तो त्याच वेळी जागेवरतीच गेला की काय, असं आम्हाला जाणवलं. पण तो हॉस्पिटलला गेल्यानंतर पण तो 35 मिनिटांनी तो होशवर नव्हता, त्याला सलाईन वगैरे लावून वगैरे. एवढं त्याला आम्ही म्हणजे एवढं त्याला आम्ही मारलं होतं, कारण आमची तुकाराममुळे शहीद झाल्यामुळे आम्ही त्या रागाने त्याचं तुटून पडलो होतो. मग त्याला जेलमध्ये नेलेलं का डायरेक्ट? तिथून मग त्याला मग तिथून त्याच्यावर ट्रीटमेंट वगैरे झाल्यानंतर तो शुद्धीवर आला. त्यानंतर त्याला मग क्राईमचं आमचं ऑफिस आहे, क्राईमला घेऊन गेले, आणि तिकडून मग सगळं इन्क्वायरी करून वगैरे नंतर त्याला अर्थोड जेलला तिकडे नेले. अच्छा, धन्यवाद. सर, हमारी एक स्टूडेंट है, वो आपसे क्वेश्चन पूछ रही है कि बच्चे एग्जाम्स में इतने प्रेशर में आ जाते हैं दैट दे कांट फेस द एग्जाम्स, उसका प्रेशर नहीं फील कर पाते हैं, उसका प्रेशर फेस नहीं कर पाते हैं. तो आप इतनी हाई प्रेशर जॉब, इतने हाई प्रेशर सिचुएशंस में हाउ डू यू फेस ऑल दैट सर? What exactly goes in your head while dealing with such situations? देखो, आदमी जो आदमी ने जन्म लिया वो आज न कल तो जाने वाला ही है. तो कौन सा ही काम करते समय अपन टेंशन लेके काम करके कुछ मतलब नहीं है. टेंशन लेगा तो डर मन में आए तो फिर आदमी पढ़ाई में वगैरह बोलो या कौन से क्षेत्र में वो आगे कुछ नहीं कर पाता है. तो कौन सा ही काम करते समय पूरा मन में टेंशन लाने का ही नहीं, कुछ भी होने दो, लेकिन अपने को कौन से बोलो CA का पदवी चाहिए तो उसके लिए उतना पढ़ाई करना ही करना है. तो उसके लिए टेंशन लेने का नहीं कि अभी इतना पढ़ाई है, ज़्यादा पढ़ाई है, कैसा मैं करूँ.
नहीं मुझे नहीं जमेगा ऐसा बोलेगा तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। तो करने का ही है, ऐसा पॉजिटिव करें, मन में सोचेंगे तो जरूर कर सकता है। ऐसा ये जितने वेबिनार में सब स्टूडेंट हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि कौन सा ही आप जो क्षेत्र चुना है, आर्किटेक्ट बोलो, इंजीनियर बोलो, और क्षेत्र है, तो अपन ने सब ने मन में कुछ ऐसा टेंशन लाने का ही नहीं है, और जो करने का है, आप एडमिशन लिया है ना, साइंस में लिया है बोलो, इंजीनियर के लिए लिया है, तो अपन एडमिशन लिया तो उसके लिए अपन जो काम करने का है वो अपने को करना ही है। अपने को क्योंकि इंजीनियर बनना है, आर्किटेक्ट बनना है, डॉक्टर बनना है, तो ऐसे बहुत क्षेत्र है। तो अपन ने जो भाग करने का बोला तो उसमें ही अपन वो जिद्दी से करना चाहिए। पढ़ाई ज़्यादा है ऐसा अगर बोल के कुछ होने वाला नहीं है। वो पूरा क्षेत्र में पूरा अपने पूरा बोलते हैं ना, पूरा झोंकना चाहिए, तो अपन सक्सेस हो सकते हैं। थैंक यू सर। सर एक और टीचर हैं, वो जानना चाहती है कि ऐसा कौन सा मंत्र है जो आपको और आपके सारे पुलिस डिपार्टमेंट को प्रेरित करता है, लाइक कोई ऐसी मोटिवेशनल चीज जो आप हमेशा याद रखते हैं या याद करते हैं बिफोर गोइंग आउट टू दीज सिचुएशंस, बिफोर गोइंग आउट फॉर दीज ऑपरेशंस, ऐसा कुछ है जो आप हमेशा बोलते हैं टू मोटिवेट एंड लाइक टू मोटिवेट योरसेल्फ एंड अदर्स? यस यस, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके टाइम पे तो कुछ इतना ये नहीं था। वो टाइम पे भी उन्होंने कैसे एक एक गढ़ उन्होंने कैसे जीते हैं, और औरंगजेब जितने खलिस्तान थे तो उन्होंने सबको कैसा फेस किया, और अपने पास पूरा जो शिवाजी महाराज के जो मावड़े थे बोलते हैं ना, सहकारी, तो वो एकदम थोड़े थे, ज्यादा भी नहीं थे, लेकिन गनीमी का वहाँ दिमाग चलाने का और कैसा एक करने का, तो उनसे जो प्रेरणा हमें मिली, वैसे ही सब स्टूडेंट लोगों ने शिवाजी महाराज उन्होंने कैसे किए, तो उनसे प्रेरणा लेना चाहिए सबने। ये तो मेरा मत है, क्योंकि वो टाइम में सर ऐसा कुछ नहीं था। राइट सर, आपसे अभी से बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स इंस्पायर हो रहे हैं, और वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज आस्क्ड कि पुलिस ऑफिसर बनने के लिए या फिर पुलिस जॉब्स के लिए मतलब क्या क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है, बच्चे किस तरीके से पुलिस फोर्स में आ सकते हैं इफ दे वांट टू मेक अ करियर इन इट सर? 12 एग्जाम पास होना चाहिए, और बाकी स्पोर्ट्स वगैरह रहेगा तो भी उसका भी सर्टिफिकेट और ज्वाइन कर सकते हैं। और जो साइड में ऑनलाइन में भी मालूम पड़ता है, अभी तक अभी भर्ती डिक्लेयर होने वाला है, लेकिन अभी तक डिक्लेयर हुआ नहीं है। फिर भी ये टाइम पे 3 साल अभी तक भर्ती हुआ ही नहीं है। तो पुलिस रिटायर हो रहे लेकिन भर्ती ही नहीं है। मेरे हिसाब से 3 साल होने को आया, अभी होने वाली है भर्ती, उसमें 10,000 तक लेने वाले ऐसे बोल रहे हैं। तो आप सब मालूमात करना चाहिए, अपना जो हेडक्वार्टर बोलो, नायगांव हेडक्वार्टर या पुलिस आयुक्तालय जो रहता है उधर जो स्टाफ रहता है उधर आप इंक्वायरी करेंगे तो सब पता चलेगा। उसके लिए वॉकिंग, रनिंग, फिजिकल सब होना चाहिए, और मेन डेयरिंग होना चाहिए, ये भी उतना ही है। और ये डिपार्टमेंट में डिफेंस डिपार्टमेंट है ये, तो इसमें Yes, sir. कौन सा एक जो है वो काम अपने सामने कुछ बड़ा हादसा हो रहा है तो वो देख के भाग के जाएगा तो उसके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। तो अपना डिपार्टमेंट ऐसा है कि कुछ भी कौन सा ही हादसा होने दो, सिचुएशन रहने दो, तो उसको फेस करना ही है। बाद में सिविल पे हो या यूनिफॉर्म पे तो हो तो करना ही करना है, सिविल पे हो वो भी टाइम पे करना है, अपने सामने हो रहे हैं
वो देखते नहीं रहने का, वो करना ही करना है। और पब्लिक भी एक जागरूक पब्लिक है। पब्लिक का भी काम है कि अपना अपन जो बस से प्रवास कर रहे हैं, ट्रेन से प्रवास कर रहे हैं बोलो, और अपने एरिया में किधर डाउटफुल बैग दिख रहे हैं तो आजू बाजू में देखने का पब्लिक का भी काम है। क्योंकि क्राउड है, दिन से दिन क्राउड बढ़ रहा है और पुलिस कम पड़ रहा है, तो पब्लिक का भी काम है कुछ ऐसा डाउटफुल चीज लगे या कौन सा ऐसा डाउटफुल बैग है कुछ ऐसा, तो सीधा 100 नंबर घुमाने का, कंट्रोल रूम को फोन करने और बताने का ऐसा एक डाउटफुल बैग है या डाउटफुल एक आदमी लग रहा है, उसके हाथ में कुछ दिख रहा है हथियार जैसा या कुछ आपको जैसा सामने देख रहे हैं, वो 100 नंबर का बताने का, उधर तुरंत पुलिस आएगी, उसको ताबे में लेंगे, उसका सब झटती हुए लेंगे, तो उससे आगे पता चलेगा वो कौन है क्या, सब उसका इंक्वायरी वो सब हो जाएगा। ये पब्लिक का भी काम है, क्योंकि पुलिस सब जगह तो देख नहीं सकते हैं, लेकिन जिधर पुलिस है तो पुलिस वो अपना काम करती है, लेकिन पब्लिक का भी काम है कि पुलिस को सपोर्ट करना। तो कुछ मारा मारी हादसा हो रहा है तो देख के अपन सीधा निकल जाने का तो गलत है। खाली एक फोन करेंगे वो बहुत हो गया, पुलिस उधर तुरंत आएगी और अपना काम करेगी। बिल्कुल सर, एज सिविलियंस इट्स आवर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स आवर स्टेट, टुवर्ड्स आवर नेशन, कि अगर कुछ गलत हो रहा है या अगर कुछ सही नहीं लग रहा है तो हमें डेफिनेटली रिपोर्ट करना चाहिए, और अगर हम लोग और कुछ नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट रिपोर्ट तो करना ही चाहिए। यस यस सर वी हैव वन मोर क्वेश्चन। मैं पूछूं एक मैम एक हाँ, बात? यस प्लीज गो अहेड। अभी जो यंग पीढ़ी है, यंग जनरेशन, वो अभी जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो क्या यंग जनरेशन है वो गाड़ी इतने तेजी से चलाते हैं लेकिन वो सर पे हेलमेट भी नहीं रहता है, तो हम उनको रुक के बोलते हैं भाई तुम को देख के हेलमेट डालेंगे तो गलत है ना, हमको देख के नहीं डालो, आपके सेफ के लिए डालो, इधर गाड़ी स्लिप हो जाएगा, तो हेलमेट रहेगा तो आपकी जान बच सकती है, नहीं तो सर को मार लगेगा तो आदमी का कुछ भरोसा नहीं। इसलिए सब स्टूडेंट हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप मोटरसाइकिल और सब चलाओ, 4 व्हीलर चलाओ, लेकिन उसका तो तेजी रहता है, वो थोड़ा लिमिट में रहेगा तो गाड़ी कंट्रोल हो सकता है। और मोटरसाइकिल भी जो चलाते हैं तो वो पूरा बैलेंस के ऊपर रहता है, 2 व्हीलर, इधर गाड़ी स्लिप हो सकती है और तेजी से रहेगा तो गाड़ी कंट्रोल नहीं हो सकती है, तो हेलमेट जरूर आप सब लोग डालिए, तो कुछ हो जाएगा तो कम से कम अपना जान तो बच सकते हैं। क्योंकि हम लोग अभी जाते हैं कभी भी किधर भी जाएंगे तो हेलमेट, घर से निकले मोटरसाइकिल में बैठे तो हेलमेट डालना ही डालना है, जिधर रुकना है गाड़ी रुकने के बाद हेलमेट निकालने का। लेकिन कुछ लोग उनसे भी बात करते हैं, कान पे ऐसा ये करके ऐसा कान मोबाइल लगाते हैं और जाते हैं, वो भी गलत है। तो अपना ध्यान पूरा मोबाइल के ऊपर रहता है तो उससे एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, इसलिए मोबाइल से बात करने वाले उनके ऊपर भी हम लोग कार्रवाई करते हैं। तो कुछ बच्चे लोग को वो थोड़ा लगेगा कि यार पुलिस वाला हमारे ऊपर कार्रवाई करती है, लेकिन कुछ वो गलत कर रहे हैं उसके वजह से उनको उनका एक्सीडेंट हो सकता है, उनकी जान जा सकती है, इसके लिए पुलिस वो कार्रवाई करते हैं। तो एक बार कार्रवाई किया तो दोबारा वो गलती नहीं कर सके, ये इसलिए पुलिस कार्रवाई करती है। बोले मैम। I totally agree sir, I totally agree। और I think हमें अपने यंग जनरेशन को और ज्यादा बताना चाहिए और सतर्क रखना चाहिए, ताकि वो लोग ऐसी जो छोटी छोटी गलतियां हैं जो बड़े एक्सीडेंट्स में कन्वर्ट हो सकती हैं वो ना करें। सर वी हैव लास्ट क्वेश्चन। What do you think politicians and politics not allow police to perform their duties very effectively and efficiently? सर आपको कभी ऐसा आपके साथ कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि because of the politics you are not able to do your job properly or effectively? यस वो है पॉलिटिक्स, कामदार खासदार रहते हैं तो उनके जो नीचे काम करने वाले जो लोग रहते हैं तो वो लोग बात करते हैं कि गाड़ी से आइए तो इसका गाड़ी है, सबका गाड़ी है, सबका गाड़ी है, ऐसे ऊपर से प्रेशर
ऐसा हमको डरा दिया है। और बार ऐसा हुआ है, मैं उनको बोला कि ठीक है, कौन साहब है, कौन आमदार साहब है, कौन खासदार साहब है, उनसे मैं बात करता हूँ। साहब आपने उसको बिना लाइसेंस चलाने को बोला है क्या, या आपने हेलमेट नहीं डालने को बोला, ऐसे जो उसके बारे में वो कुछ ऐसा गलती कर रहे हैं, वो बारे में मैं पूछता हूँ। ठीक है, सब मैं लगाता हूँ उसको, जैसे उनको बोलता हूँ मैं, तो बाद में कुछ लोग ऐसे खाली नाम भी बताने वाले हैं और कुछ लोग रियल भी है, तो रियल भी मैं बात किया है। तो मैं सीधा सीधे मैं बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उनसे सर बोला कि सर हम हमारी ड्यूटी कर रहे हैं, तो ड्यूटी में लोग गलत काम करते हैं और गलत काम करके भी सर आपका नाम लेते हैं। कुछ हम लोगों ने कुछ गलती किया, उसको जानबूझ के उसको डांटे, तो उसने आपको फोन किया, लेकिन वही गलती करता है और गलती करके भी आपका फोन लाता है वो, तो पुलिस के ऊपर वो दबाव लाता है। उसने किया कि नहीं, आप देखो सीसी कैमरा और सब लगा है सर, आप देख सकते हैं, उसका सीसी कैमरे का निकल के आप देख सकते हैं। तो ऐसा बोल, तो सर बोले कि ठीक है, आप बोले, मुझे मालूम इस्तेमाल करते हैं, वो खुद बोले। Sir, we have a question from one more student, and this is the last question, sir. I don't know if you would know much about this matter, but constable exam date has been postponed and the date hasn't come out yet. Would you have any idea, sir, any news on that? ना, अभी तक कुछ न्यूज ऐसा नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा पता चलेगा तो मैं पार्थ को बताऊंगा। पार्थ अपना है, दोस्त है, उसको मैं बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। Thank you so much, sir, and thank you for answering our all questions so patiently. Now I request Dr. Mona Mehta, Vice Principal, to propose the vote of thanks. Ma'am, over to you. Thank you, Ankita. Sir, we are very delighted to have you amongst us. एक तो आपने जो कहानी हमें सुनाई 26/11 की, आपकी आंखों देखी, उसको सुनने में हमें एहसास हुआ कि वो टाइम कितना डिफिकल्ट था। अभी भी जब भी कभी हम 26/11 के बारे में सोचते भी हैं तो भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बट आपने कितनी ब्रेवरी के साथ उसका सामना किया और सिटीजन्स का ध्यान रखते हुए सब कुछ किया, ये बहुत एडमायरेबल है। So Nagindas Khanwala College is delighted to have you amongst us for the 72nd Republic Day celebration. सर आपसे बहुत चीजें सीखने को हैं। ब्रेवरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइफ में कभी भी आगे बढ़ना है, ब्रेव होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ब्रेवरी के साथ यू हैव टू केयर फॉर पीपल ऑल्सो। ये दो एक्सट्रीम हो जाते हैं, एक साइड हम ब्रेवरी की बात कर रहे हैं, एक साइड हम बात कर रहे हैं कि हमें ख्याल रखना है लोगों का। ये दोनों चीजें आप में बैलेंस में हैं, वो बहुत बढ़िया है। सेकंड, अलर्ट रहना, जो भी हो रहा हो अलर्ट रहना, उसको समझ के करना। ये सिर्फ पुलिस को नहीं जरूरत है, हम नॉर्मल सिटीजन्स को भी इसकी जरूरत है कि हम अलर्ट रहे। सिर्फ लाठी के साथ मैनेज करना ब्रिलियंट है, कोई भी नहीं कर सकता। कमिटमेंट, इसके लिए कमिटमेंट चाहिए, एवरी डे ये जॉब करना पड़ता है, ये इट्स नॉट वंस इन अ डे, एवरी डे। एंड सर आपने जो आंसर दिया टेंशन नहीं लेने का, वो तो बहुत ही बढ़िया आंसर है, क्योंकि हम लाइफ में इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने आप को बदल देते हैं और निराश हो जाते हैं अपने आप से। आपने वो बताया कि जो करना है वो तो करना ही है और उसके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। थैंक यू सर कि आप टाइम निकाला और हम सबके बीच में आए और अपनी भावनाएं शेयर करी और हम समझ पाए कि कितनी कंट्रीब्यूशन है पुलिस का। And we really appreciate the kind of work you are doing. Thank you, sir, from everybody of the Parivar of Nagindas Khanwala College. Thank you, ma'am. I like to thank the management also for always constantly supporting such endeavors. Our principal ma'am, Dr. Mrs. Nancy Jones, for the encouragement that she always gives us. The vice principals, Professor V.G. Suchak, who became so emotional and passionate about his country, India, when he spoke today.
Thank you, sir, for passing on that, rubbing on that passion to us. Professor Dr. Moshni Datta, for her constant encouragement, always with us wherever she is, even though she's not present in the function today. I'm sure her encouragement always motivates us to do better. CA Reena Desai, ma'am, for having the vision to do this with her entire Springs team. Ma'am, thank you for giving us an opportunity to love our country again. You know, we celebrate Valentine's Day, Rose Day, Sari Day, but I think a day we should never forget to celebrate is the Republic Day and the Independence Day. So thank you, Reena ma'am, with your entire team for giving us this opportunity. I'd like to thank Dr. Vinay Prabhu for this fantastic introduction, which was filled with passion and got us charged. And through so many insights about the police, which we are aware, or we choose to overlook, or we were unaware of. Thank you for taking us from ignorance to enlightenment, as they say. Mr. Edwin Matthias for his constant support to the team, Springs that he's always been extending. CA Ankita for binding us together. You never let a moment go. Not even one question was missed out, and you kept it going. Thank you so much, Ankita, for doing that for us. Members of the Student Council, Springs, I think great initiatives. This year, you have taken so many unique initiatives. So keep that spirit up and keep charging us too with all your energy. Faculty members of Khanwala College who are always there for support and encouragement, thank you for your presence today. The alumni student, in particular Path Goswami, thank you for helping us out set this up. Students of Springs, students of various programs of the college who have been over here. And all my dear friends who are present here, let's love our country, and a happy Republic Day to all of you. Thank you. Madam, staff members of BSGD. Yes, I can't ignore that. Thank you, sir. Junior College, Anuja ma'am, thank you for being over here, and all the staff members of Junior College and the students of Junior College too, who combine with the Springs team. Right? It's a very special feeling when junior and degree meet, and for this occasion, we have had the opportunity of having that. Thank you, everybody. Before we finish this, let's all rise for our national anthem. I request everyone, and I request Josh to play.
I, on behalf of Nagindas Khandwala College, want to thank each and everyone who are present over here, our vice principals, Vijay Suchak sir, Dr. Mona Mehta, our students council convener, CA Dr. Reena Desai, all the participants, students and teachers, and most important and special thanks to Shri Mangesh Nayak sir for gracing the event. Thank you so much, sir. Reena ma'am, would you want to say something? ज्येष्ठा रेकॉर्डिंग you. बंद करी दे ना.